Okay, friends. Now, in continuation with our class on health, this is uh, this is a this is a case of kidney failure, and this horoscope belongs to a very famous personality. आप लोग सबने नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण जी का ये हॉरोस्कोप है, जो कि आपको मालूम है जेपी। उस जमाने में तो हम लोगों ने डायलिसिस का नाम सुना ही नहीं था। इन्हीं इन्हीं को जब किडनी का प्रॉब्लम हुआ तो पहली बार शायद हम लोगों ने सुना डायलिसिस क्या चीज होती है। आजकल तो घर घर में मतलब इतना कॉमन हो गया है किडनी फेलियर, किडनी डिजीज और डायलिसिस हर छोटे छोटे हॉस्पिटल में होने लगा है। तो ये केपी जी का हॉरोस्कोप है और देखिए इसको वही है, cuspal tables are there, planetary tables are there, and chart is there, table of significators is there. Okay, so now देखिए जो हमने नोट्स लिखा है, मैं कर्सर को चेंज करता हूँ, इसमें बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर क्या, ऊपर भी है, हाँ नीचे भी, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखिए हमने लिखा है while sublords are very important and the ultimate deciding factor in the case of disease, and it is in the case of disease ultimately deciding factor is a sublord. It is of importance to judge significations of the bhav. भाव मतलब house, cusp, Rashi, Star Lord, and also as all of them are related and represent certain diseases as we have studied in the write-up. Okay? However, first we have to check out whether disease or ailment oblique ill health is indicated by checking out the connections between sixth house and the ascendant, which is the basic first step in the analysis of health and disease in KP. Connection between first and sixth हमको first and foremost देखना है. In this case, the sixth cuspal sublord is Venus. Venus bracket में हमने लिखा है kidneys. In the star of moon, the ascendant lord. Okay. So sixth sublord, Venus का connection, it is sitting in the star of moon, the ascendant lord. ठीक है, ये देखिए यहाँ ascendant lord moon है, उसके स्टार में वीनस बैठा हुआ है. So Venus signifies the first house. Sixth cuspal sublord signifies the first house. The connection between sixth and first step in the analysis of health and disease in KP. This is the first step. In this case, the sixth cuspal sublord is Venus. Oh, ये repeat हो रहा है. Is thus the connection is thus established. The ascendant sublord is Rahu. Ascendant sublord is Rahu, situated in Libra, again kidneys. And by being in Libra, it represents Venus, again kidneys. Rahu is in the star of Mars, sitting in the Lagna. So Rahu signifies the first house, Lagna. Venus is placed in Virgo. ठीक है, वर्गो इज अगेन सिक्स्थ हाउस, किडनीज को भी दिखाता है वर्गो, और मरकरी का घर है. ठीक है, वर्गो द नेचुरल ओनर ऑफ द सिक्स्थ हाउस, डिजीज इन द नेचुरल जोडियक. फर्दर वीनस, एक मिनट, लेट मी चेंज द कर्सर. फर्दर Venus, the sixth sublord, also signifies the seventh house, kidneys. How? Venus seventh, आप significator tables आपके सामने हैं, उसको देखिएगा. ठीक है. Further, sixth cuspal sublord Venus also signifies the seventh house, kidneys.
as an A grade significator by being in the star of Moon, which occupies the 7th house kidneys. Again, Moon is the lord of the ascendant and signifies, is in its own star placed in the 7th. So again signifies kidneys by being an A grade significator of the Moon. So everything is connected. 6th, 7th, kidneys, 1st, everything is very intimately and very closely connected. So the connection between 6th, 1st is complete and points towards any ailment, oblique organ that the combination of Venus, Libra and the 7th house points towards. Bracket में हमने लिखा है check the list in the general write-up to confirm. So a kidney ailment is a distinct possibility. So a kidney ailment is a distinct possibility. We are not saying कि अब इनको किडनी की बीमारी हो ही जाएगी. ऐसे तो बहुत सारे आपको हॉरोस्कोप्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें ये कॉम्बिनेशंस आपको मिल सकते हैं. तो नेक्स्ट में लिखा है, मैं कर्सर को चेंज, आप लोग ट्रैक लूज कर जाएंगे. बट देखिए, बट merely because this combination exists, but merely because this combination exists, is it imperative? Imperative मतलब unavoidable. Is it mandatory? Is it a must that the native will fall sick or suffer from this or any other ailment? Just because ये combination है 6 sublord का और Venus का और Libra का और 7th house का, तो क्या ये जरूरी है क्या कि this person is going to fall sick or suffer from this or any ailment, any other बीमारी, any other illness? कोई जरूरी है? Now इसका क्या जवाब है? This can only be ascertained by checking whether the 6th sublord. This can only be ascertained by checking whether the 6th sublord, देखिए सब कुछ होने के बावजूद भी, you have to check out whether the 6th sublord is strong enough to protect the native. That is whether it signifies the improving houses in KP or it signifies the disease negating houses. That is the 5th or 11th in general. 5th और 11th कई बार बीमारी देते भी हैं. 5th जैसे हार्ट को भी दिखाता है और 11th कुछ लग्नों के लिए, ये कुछ लग्नों के लिए जो है बाधक हाउस भी होता है. तो remember that we are treating with, अगर we are talking about a serious disease, तो अगर जो है अगर ये movable sign का ascendant अगर है, तो 11th house becomes the बाधक house. Please remember, okay? That is 5th element. But otherwise in normal circumstances, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि 6th house, the house of disease, उसका sublord क्या strong enough है कि बचा लेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होगा या बीमारी देगा और फिर बचा के ले जाएगा, रिकवरी दे देगा, आदमी रिकवर कर जाएगा, गुड हेल्थ फिर से एंजॉय करेगा कि नहीं, वो हम देखेंगे 6th का सबलॉर्ड कितना प्रोटेक्शन दे रहा है. देखिए आपको याद होगा, हम शुरू से राइट फ्रॉम डे 1 आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द कस्पल, इंपॉर्टेंस ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड इन एनी एंड एवरी हॉरोस्कोप. दशा, अंतरदशा, सिग्निफिकेटर यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये सारे बेकार हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपके कस्प के लिए अगर कस्पल सबलॉर्ड रास्ता नहीं खोलता है या प्रोटेक्शन नहीं देता है, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये है, दिस इज कस्पल सबलॉर्ड. कस्प का दरवाजा, कस्पल सबलॉर्ड वो कितना मजबूती से खोलता है या बंद करता है, कस्पल सबलॉर्ड पे डिपेंड करता है. ओके, वीनस, नाउ डैश देके हमने लिखा है वीनस द 6th कस्पल सबलॉर्ड signifies the 7th at the stellar level. 7th is not a good house. Okay, KP में 7th is not a good house. It is a house of marriage, but in general terms, if any मारक तो मारक देखिए, मारक हम उस जब होता, हाँ, जब डेथ की बात कर रहे हैं, जैसे इस केस में
इस केस में हम जब वो डेथ, वो हम लॉन्गेविटी जब उनके हम डिसाइड कर लेते हैं, तब देन सेकंड सेवेंथ दे स्टार्ट एक्टिंग एज मार्कास इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. अदरवाइज सेवेंथ मैरिज देता है, सेकंड जो है धन भी देता है, इनकम भी देता है, स्टेटस देता है. ठीक है. बट अदरवाइज इन जनरल टर्म्स अगर किसी सिग्निफिकेटर की बात करते हैं कि ये इंप्रूविंग हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं, तो उसमें सेवेंथ का नाम नहीं आता है. इंप्रूविंग हाउसेस in KPI 1, 2, 3, 6, 10, 11 in general. ठीक है. The seventh otherwise is also not good house, not a good house. So the sixth cuspal sublord signifies the seventh at the stellar level, and through its sublord Rahu, it again signifies seventh only, as Rahu also represents Venus only. So there appears to be no protection. कोई प्रोटेक्शन हमें सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड नहीं दे रहा है. और ये बीमार चल रहे थे, ये तो खैर बीमार चल रहे थे उस समय का है. वीनस डज सिग्निफाई द 11th हाउस. वीनस डज, एक मिनट इसको कर्सर, वीनस डज सिग्निफाई द, वीनस का सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड है, इट सिग्निफाइज द 11th हाउस. लिखा है हमने वीनस डज सिग्निफाई द 11th हाउस, but that does not give protection to movable sign lagnas. अभी जो मैं बात कर रहा था, आप लोग अगर लॉन्गेविटी का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको याद होगा मारक बाधक का कॉन्सेप्ट. मूवेबल साइंस के लिए 11th हाउस जो है वो बाधक हाउस होता है. ठीक है. और उसके जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं, दे एक्ट एज द बाधकास टू ब्रिंग अबाउट डेथ. ठीक है. So Venus does signify 11th house, but that does not give protection to movable signs. In this case, Cancer. ठीक है. Cancer है, लग्न एक कैंसर है इस केस में. So Venus जो है सिक्स सबलॉर्ड, Venus 11th house को दिखाता है, तो it becomes a बाधक planet also, besides being sublord of the 6th house. Now let us check the coordinates of Lagna and 6th house. हमने लिखा था ना, इसमें राइटअप में लिखा हुआ है कि बीमारी में हम सारे कोऑर्डिनेट्स को हम देखते हैं. नाउ लेट अस चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लग्ना एंड सिक्स्थ हाउस. लग्ना मून सैटर्न राहु, मतलब राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड्स और सब लॉर्ड. मून सिग्निफाइज सेवेंथ किडनीज. मून देखिए यहाँ सिग्निफिकेंट टेबल्स आपके सामने हैं. मून सिग्निफाइज सेवेंथ किडनीज. सैटर्न प्लैनेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन सिग्निफाइज एट्थ हाउस. ठीक है. एट्थ हाउस को सिग्निफाइज आपके सामने ये देखिए ऊपर टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स, सैटर्न एट्थ हाउस को दिखा रहा है. राहु ऑलरेडी डिस्कस्ड. सिक्स्थ हाउस दिखा रहा है जुपिटर वीनस. वीनस जुपिटर अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 2, 7 एंड 8. 2, 7 सीधे सीधे क्या हो गया? 2, 7 सीधे सीधे क्या हो गया इस केस? मारक हाउसेस, मारक हाउस. और आठवां भी वारक ही एक्ट करता है जब डेथ की बात आती है तो. ठीक है. एंड सिग्निफिकेटर ऑफ सिक्स्थ, there is no protection from the indicated disease. JP, as he was popularly known, suffered from kidney failure during Mercury, Jupiter, Venus. Mercury signifies 12th. 12th को भी मारक ही माना जाता है. Mercury signifies 12th. सामने आपके significator table में देखिए. 12th is in Libra. Mercury is in Libra again, kidneys. And its sublord is Saturn. Its sublord is Saturn. Jupiter and Venus already discussed. Mercury is a Marak, 12th house. Jupiter is a Marak, देख लिया हमने 2, 7, 8. Venus is Badhak, being Lord of 11th. तो Mercury, Jupiter, Venus में इनका देहांत हुआ था. JP breathed his last on 8/10/1979 during this period only, after being on continuous dialysis. अब आप लोग कहेंगे कि इस प्रकार से क्या हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं. आपके पास जब आएगी पत्री तब आपको हेल्थ के बारे पूछा जा रहा है तो आपको इस तरह से देख करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप. दिस इज व्हाट केपी इज. इट कम्स ऑफ कोर्स आफ्टर लॉन्ग एक्सपीरियंस
सबसे पहले तो सिक्स्थ के सबलॉर्ड को देखिए, सिक्स्थ का सबलॉर्ड कहीं सेविंग ग्रेस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, सेविंग ग्रेस कहीं दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। सिक्स्थ आप कहेंगे ठीक है, 11th से कनेक्टेड है, ठीक है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अब आप इसको यूं देखो, पैसा वैसा तो उतना नहीं, लेकिन हाँ उनके सारे विशेष, वो जो चाहते थे, वो नेता थे, सारा कुछ फुलफिल हुआ। सिक्स्थ हाउस आफ्टर ऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी हाउस है, लेकिन मारक और बाधक तब काम करता है जब डेथ का टाइम आता है। देन दैट सेम सेकंड हाउस, दैट हाउस ऑफ इनकम एंड स्टेटस, it becomes a marak house. That same seventh house, which is the house of marriage and business, etc., it becomes the marak house. And that same 11th or 9th or 7th, they become badhakas. But उसको हम कब बांधते हैं मारक बाधक? जब हमारे डेथ का टाइम आता है। तो डेथ का टाइम हम लॉन्गेविटी निकाल करके पहले से हम प्रेडिक्ट करके रख सकते हैं। उसमें जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा, then they get converted into, they become from second house, a money giving house, status giving house, it becomes the marak house, death inflicting planet it becomes. Seventh ka same, from the marriage giving house, from the business angle, business dene wala bhav, theek hai, it becomes a marak. And 11th house in case of movable rashis, 11th house, which is supposed to be the most beneficial house in KP or in astrology, you can put it that way, that becomes a badhaka house for movable signs. तो ये तीनों डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट हो जाते हैं। तो ये आपका कहना सही है, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं कि हम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। तो सीखने के लिए इन रेट्रोस्पेक्ट जो प्लैनेट्स हम जो हमारे पास हॉरोस्कोप्स होते हैं, उनको हम स्टडी करके सीखते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। और इसमें अगर वही सिक्स्थ हाउस का सबलॉर्ड जो वीनस है, अगर इट हैड बीन कनेक्टेड टू से थर्ड और इंप्रूविंग हाउसेस, थर्ड से होता, देखिए फर्स्ट से कनेक्शन खराब नहीं होता है, अदरवाइज फर्स्ट और सिक्स का कनेक्शन ये दिखाता है, फर्स्ट और सिक्स का ये कनेक्शन दिखाता है कि बीमार होंगे, लेकिन अदरवाइज किसी डिजीज के सिग्निफिकेटर का फर्स्ट हाउस से कनेक्शन खराब नहीं माना जाता। इट इज सपोज टू बी, लॉन्गेविटी में भी आप पढ़ते होंगे कि if the lord of this first house का ascendant sublord if it is connected marak badhak तब तो देता है। But if these marakas badhakas, the death giving houses, they are connected with third होता है, eighth होता है, if the eighth house is strong, तो जिंदगी लंबी होती है। और improving houses में फर्स्ट हाउस का नाम आता है इंप्रूविंग हाउसेस में। बट डिजीज के केस में फर्स्ट और सिक्स्थ का कनेक्शन होना जरूरी है। बीमारी होगी क्योंकि सेल्फ को कौन दिखाता है, बाकी तो ऑर्गन्स दिखाते हैं, बट ओवरऑल काल पुरुष को जो दिखाता है वो फर्स्ट हाउस दिखाता है। तो फर्स्ट का और सिक्स का कनेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं आदमी बीमार पड़ेगा। कितना बीमार पड़ेगा, दैट वो सारे फिर सबलॉर्ड्स दिखाते हैं। 8वां, 6ठा, 12वां दिखाता है। जहां 12वां आ जाएगा वहां हॉस्पिटल, ये तीन कॉम्बिनेशन आएंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारी। तो एनीवे, दिस इज वन केस। किडनी का एक हमने केस लिया, क्या है कि किडनी की बीमारी आजकल जो है, किडनी या किडनी रिलेटेड बीमारियां आजकल जो है ना बहुत कॉमन है। डायबिटीज हैज बिकम वेरी कॉमन, एंड डायबिटीज इफ अनकंट्रोल्ड कैन लीड टू all sorts of any bimari. It can lead to your it could lead to heart attack, it could lead to paralysis, and it could lead to kidney failure. तो these सबसे ज्यादा आजकल कॉमन जो सब सुनने में आ रहा है, पैरालिटिक अटैक हो गया। हार्ट तो बहुत कॉमन हो गया है। हार्ट तो वैसे पहले जमाने में जैसे सर्दी खांसी होती थी, वैसे आजकल लोगों का एंजियोप्लास्टी होता है, आदमी हॉस्पिटल जाता है, 3 दिन के बाद घर आ जाता है, लेकिन होता है। So that's it, friends, and if there are any questions I'll continue, otherwise we'll go to the next example. बताइए इसमें। सर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था, इसमें हम लोग दोनों चीज देखते हैं। पहला तो सबलॉट
सबलॉट किस राशि में है, किस स्टार में है, वो दोनों देखते हैं। देन कस्प का राशि और कस्प का स्टार भी देखते उसको हैं। भी ये उससे 4 आपको चीज डिजीज का आइडिया मिलेगा। आपने देखा नहीं, ऑल एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स, यू नो, एवरीथिंग पॉइंट्स या टुवर्ड्स, नॉट नेसेसरली किडनी। इसमें तो किडनी हो गया था तो इस हम नहीं नहीं लेकर के वो उसको ठीक पकड़ के चल रहे हैं किडनी, लेकिन points towards, you know, any disease that could be given by Venus or the 7th house or the 6th house. तो अब उसमें से आप लिस्ट निकाल के फिर मैच सारे आपको परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्लैनेट्स के, भाव के, राशियों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक कागज पे नोट करके देखिए, कॉमन फैक्टर जो है ना किस चीज की तरफ पॉइंट करता है, उस तरीके से आपको यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन। इसमें सबसे कॉमन से नजदीकी चीज जो है वो किडनी निकल सर रही जी, जी। सर जी एक पॉइंट रिगार्डिंग जयप्रकाश जी की बोलना चाहेंगे। हाँ, इनका 2 बार मृत्यु हुई थी, एक बार मार्च महीना में हुई थी, एक बार अक्टूबर नहीं महीना नहीं में नहीं, हुई। वो गलत अफवाह थी, पर मृत्यु नहीं हुई। अफवाह नहीं, वो मोरारजी देसाई साहब ने पार्लियामेंट में डिक्लेयर नहीं, कर वो दिया था, डिक्लेयर स्कूल कर दिया वगैरह था, सारा लेकिन बंद हो गया था। नहीं नहीं, वो नहीं, वो हुआ था, लेकिन ही वाज नॉट वो कुछ, हाँ, he did not die ही actually. डिड नॉट डाई। He smiled after तो a day or so. वो उसके बाद पहले जमाने में ये सब थोड़ी था कि व्हाट्सएप पे खबर चली गई, वो डॉक्टर ने देखा। नहीं तो वो इसमें दिखता है कि नहीं, हॉरोस्कोप में नहीं नहीं दिखता नहीं है। नहीं, हमने दिखता भी हुआ तो हमने नहीं देखा, वो हुआ ही नहीं था, मृत्यु ही नहीं हुई थी तो कैसे दिखेगा भाई? मृत्यु हुई ही नहीं थी उनकी, वो हुआ था, अरे अच्छा सर, पहले। इसमें एक चीज है कि पहला कस्प का सबलॉर्ड राहु है, और राहु के केस में आपने ये भी बताया है कि अगर राहु होगा तो वो अनडायग्नोस्ड होगा। नहीं नहीं तो नहीं, वैसा कुड कुछ बी, आप कुड बी अनडायग्नोज्ड, कुड बी, बहुत सी बीमारियां होती हैं। अच्छा और एथ इसको हाउस का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए उसमें, सीरियस अनडायग्नोज्ड डिजीज से अगर राहु कनेक्टेड है, होगा नहीं। देखिए, पत्थर की लकीर कोई भी चीज नहीं है भाई, इतनी सारी बीमारियां हैं, ओके। बहुत सी बीमारी होती है, डॉक्टर बोलते हैं नहीं पता चल रहा है यार क्या है, सारा टेस्ट हो गया है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। उसमें आप अक्सर देखिएगा राहु का उसमें आपको कनेक्शन निकलेगा। राहु एंड 8th हाउस दोनों। हाँ हाँ, निकलता है राहु का अनडायग्नोज डिजीज में। अनडायग्नोज मतलब और डिफिकल्ट टू डायग्नोज, आसानी से डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। बहुत सा होता है मिस्ट्री डिजीज, आजकल सुनते होंगे मिस्ट्री डिजीज भी कई बार होती है, उसका पता ही नहीं चला क्या हुआ, या तो डॉक्टर लोग डायग्नोज नहीं कर पाए, या कुछ ऐसा डिजीज हो गया। अब कोविड ही नया नया आया तो क्या था, एक तरह से नई बीमारी आ गई, हालांकि है तो वायरस ही, लेकिन तो चलिए इसको हम रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास पर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसको हम। Should I stop the recording then? Okay. Yes.